Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss the last act of the play Hamlet. In this act we see, in the first scene of this act we see, that is a very famous scene of English literature, not of this play but of English literature. This is called the graveyard scene. In the churchyard, two grave diggers shovel out a grave for Ophelia. They argue whether Ophelia should be buried in the churchyard since her death looks like a suicide. There is a concept that we have already discussed, that there is a kind of contradiction about a natural death or a suicidal death of Ophelia, whether she should be buried according to Christian rituals or should be buried according to some other way. She must be given a proper funeral or not due to her suspected suicide. According to religious doctrine, suicides may not receive Christian burial, as we do have in Islam. The first grave digger, who speaks cleverly and mischievously, asks the second grave digger a riddle. What is he that builds stronger than either the mason, the shipwright or the carpenter? ये कब्र की बात हो रही है ना, ग्रेव की. कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है? मेसन जो होता है, शिपराइट या फिर carpenter. The second grave digger answers that it must be the gallows makers, for his frame outlasts 1,000 tenants. The first grave digger corrects him, saying that it is the grave digger, for his houses will last until doomsday. Who is better architect? A grave digger in this regard, because the houses he makes will last until doomsday. Hamlet and Horatio enter at a distance and watch the gravedigger's work. Hamlet looks with wonder at the skulls they excavate to make room for the fresh grave and speculate darkly about what occupations the owners of these skulls served in life. वहाँ पे पड़ी हुई ना, कई स्कल्स पड़ी हुई हैं, इधर उधर करके वहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाते हैं. अब वो उनको डिस्कस करते हैं, उनको देख के ख्याल आता है. एक बड़ा अजीब सा तजुर्बा होता है जब भी आप कब्रिस्तान में जाएं तो इंसान को अपनी हैसियत का और अपने इंजाम के बारे में सोचना शुरू करता है. या कई दफ़ा एक बड़ा ही एक रोमांटिक अंदाज़ है ये कि किसी भी स्कल को, खोपड़ी को देख के इंसान को ये ख्याल है ये कौन होगा, कैसा इंसान होगा. आते ना ऐसे सवाल ख्यालात. तो ऐसा ही ये वहाँ पे हो रहा है. Why may not be the skull of a lawyer? Where be his quiddities now? Hamlet asks the grave digger whose grave he digs, and the grave digger spars with him verbally, first claiming that the grave is his own since he is digging it, then that the grave belongs to no man and no woman, because men and women are living things and the occupant of the grave will be dead. At last he admits that it belongs to one that was a woman, sir, but rest her soul, she is dead. उसका ये शेक्सपियर का अंदाज़ है. उसके जो आम से करेक्टर्स हैं वो भी बड़े फ़लसफियाना और शायराना अंदाज में बात करेंगे. ये कब्र उस औरत की है जो कभी औरत थी लेकिन अब उसकी पीछे कह रहा है कि सोल है और डेड, ऐसे करके ना बात को घुमा के बड़ा किया है उसने. ये शेक्सपियरियन अंदाज़ है बात का. The grave digger who does not recognize Hamlet as the prince tells him that he has been a grave digger since King Hamlet defeated the elder Fortinbras in battle. वो जो आ रहा है ना, वो Fortinbras उसका बाप जो मारा गया, तब से कहता है ये काम करता आ रहा हूँ. The very day on which young Prince Hamlet was born, जब से ये पैदा हुआ तब से ये काम करता है, तो कम से कम उस दिन से ही. Hamlet picks up a skull and the grave digger tells him that the skull belonged to York, King Hamlet's jester. शाही मस्खरा था जो किंग हैमलेट का, उसकी यॉर्क की ये स्कल है.
इसको पकड़ता ये इसके साथ जो गुफ्तगू है इसकी स्किल के साथ जो इसको देख के जो अपने ख्याल है बड़ी फ़िलोसॉफ़िकल है और बड़ा मशहूर ग्रेवयार्ड सीन जो है मैं बात कर रहा था उसकी ये बात है। Hamlet tells Horatio that as a child he knew York and is appalled at the sight of the skull. ही यानी आपको अंदाज़ा हो अचानक किसी आदमी जिसको आप जानते हो अचानक उसका पता चले ये उसकी खोपड़ी हाथ में पकड़ी हुई इंसान को कैसा फील आएगी ना वो वाली बात। ही रियलाइजेज फोर्सफुली दैट ऑल मैन विल इवेंचुअली बिकम डस्ट इवन ग्रेट मैन लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड जूलियस सीजर सब आखिर में मट्टी में चले जाएंगे, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जूलियस सीज़र था या कोई एक आम मस्खरा जो था कोर्ट का या कोई भी फ़कीर है या बादशाह है, सबका अंजाम मट्टी है सिर्फ। हैमलेट इमेजिन्स और ये यहाँ से इंसान को फिर अपनी कम मायगी का अपनी कम हैसियती का अंदाज़ा होता है कि मैं क्या हूँ। इंसान पफ अप हो जाता है विद प्राइड और विद सो मैनी अदर थिंग्स और उसके बाद वो अपनी ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देता है, ऐसी ऐसी बढ़कें बातें वीन ग्लोरी को एंजॉय करना शुरू कर देता है कि वो भूल जाता है कि वो आखिर में एक इज़ अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। तो हैंडफुल ऑफ डस्ट ही है इंसान दरअसल। और ये बड़ी डार्क साइड है इंसानी इंसान अगर इस हैमल अर्दली सोजर्न के बारे में अगर बात करें तो Hamlet imagines that Julius Caesar has disintegrated and is now part of the dust used to patch up a wall. तो ये वो भी इसमें एक वो एक जूलियस सीजर को इमेजिन करता है कि वो इंटेग्रेटेड एंड इज़ नाउ वो यानी इसको ज़र्रा ज़र्रा हो के वो किस में जाके मिल चुका है उसका। तो वो फाइनली मतलब कि हम अंजाम के ऊपर जाके डिटरमिन करते हैं चीज़ों को। जब अंजाम सबका ये है तो फिर बड़ा क्या छोटा क्या अच्छा क्या बुरा क्या वाली बातों में आके इंसान इसको एनालाइज भी करता है। सडनली द फ्यूनरल प्रोसेशन फॉर ओफिलिया एंटर्स द चर्च यार्ड इंक्लूडिंग क्लॉडियस, गर्ट्रूड, लेटीज एंड मैनी मॉर्निंग कर्टियर्स। हैमलेट वंडरिंग हु हैज़ डाइड notices that the funeral rites seem maimed, indicating that the dead man or woman took his or her own life. Maimed इसको भी पता चला गया ओफिलिया का। पहले वैसे ही आया था ये तो वो था ना उधर से वो छोड़ गए पायरेट्स इसको उधर से वो क्या था जहाज़ जिसमें से वो पायरेट्स ने काबू कर लिया था उसको छोड़ गए वापस साहिल पे। तो इसने ख़त लिखा कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, होरेशियो उसको लेने गया, वो साथ आ रहे हैं तो रास्ते में ये ग्रेवयार्ड इधर से वो लोग आ गए, इसको नहीं पता क्या हुआ। एज ओफिलिया इज़ लेड इन द अर्थ ही एंड होरेशियो हाइड एज द प्रोसेशन अप्रोचेज द ग्रेव। एज ओफिलिया इज़ लेड इन द अर्थ हैमलेट रियलाइजेज इट इज़ शी हु हैज़ डाइड। तब इसको पता चला जब इसको कब्र में रखा जा रहा है। At the same moment, Laertes becomes infuriated with a priest who says that to give Ophelia proper Christian burial would profane the dead. वो कहता है ना कि मेरी बहन इसको करें, तो वो कह रहे हैं कि नहीं चूँकि सुसाइड किया है तो प्रॉपर फ्यूनरल जो क्रिश्चियन फ्यूनरल रिचुअल्स हैं वो वहाँ पे नहीं हो रही। Laertes leaps into Ophelia's grave to hold her once again in his arms. वो अपनी बहन को यहाँ पे आपको वो आता है याद टॉम एंड मैगी वो जो थे वो मिल ऑन द फ्लॉस दे वर फाउंड इन अ टाइट एम्ब्रेस आफ्टर द फ्लड, बोथ ब्रदर एंड सिस्टर। इंसेस्टुअस रिलेशन बन जाता है वो भी। तो यहाँ पर भी एक इंसेस्ट वाला एलिमेंट हम बढ़ते आ रहे हैं कि मोटिव साथ साथ चल रहा है। ये इस कदर जो मोहब्बत है ना दिखाई जा रही या एक रिलेशन के अंदर गर्मी जो इन दोनों बहन भाइयों में है वो मोर देन ब्रदर्स लव या सिस्टर्स लव चला जाता है काम। तो ये इंसेस्ट की तरफ है, ये जो फीलिंग है सिबलिंग फीलिंग्स नहीं है, ये दूसरी तरफ इंसेस्ट की तरफ जाती हुई महसूस होती हैं हमें। फिर ग्रीफ स्ट्रिकन एंड आउटरेज्ड हैमलेट बर्स्ट्स अपॉन द कंपनी, उधर से वो भी आ गया उसका लवर पुराना, डिक्लेयरिंग इन एगोनाइज्ड फ्यूरी हिज ओन लव फॉर ओफिलिया। उसने बहुत गुस्से में अभी तक इसका इनकार करता है, अब गुस्से में आके इस मौके पे गम से निडाल हो गए किस वजह से भी उसने अपनी फ्यूरी का इजहार किया ओफिलिया से। ही लीप्स इनटू द ग्रेव एंड फाइट्स विद लेटिस सेइंग दैट 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum.
यानी किस कानों से एग्जैजरेट, बड़ा शेक्सपियरियन स्टाइल कि 50,000 40,000, मेरे वालों 50 ही लाओ फिर से 40,000 भाई भी आ जाएं तो इनका उस मोहब्बत के साथ कोई जोड़ नहीं है जो मैं अफिलिएटली रखता। उसने इस सम को उसने बताया, ये कौन सी नापी जा सकती है, ये कि उसने अपने हाइपरबोलिक अंदाज में बताया कि देर इज़ नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड हु लव्स द मोस्ट और लव्स मोर देन हिम, वो उससे ज़्यादा कोई नहीं उसके लिए। Hamlet cries that he would do things for Ophelia that ladies could not dream of. He would eat a crocodile for her. ये भी एक अंदाज ही है ना बताने का, कौन सा खाना था। He would be buried alive with her. मियाँ रांझा हमारे, ये भी तो एक मिथी है ना कि रांझा और हीर दोनों जो है एक जगह पे दफन है, इसके साथ जिंदा दफन हो सकता हूँ। इधर सती की रस्म भी होती थी, इधर हमारे इंडो पाक जो भी वो वननेस की वजह से है। सती मतलब मर्द यानी शौहर मर गया तो उसकी बीवी को भी उसके साथ ज़िंदा जला दिया जाता था। वो अपनी खुशी से कहती थी बज़ाहिर कि मुझे भी साथ, क्योंकि उसके बाद उसकी ज़िंदगी दरगोर, सोसाइटी पेट्रियार्कल है, ये सारा कुछ। तो ये नहीं है कहीं पर भी नहीं, अब सिंध में भी नहीं है, हमें लगता ही है सिंध में कहीं पर भी नहीं। ये तो एंशियंट पुराने इंडिया की बात है, जब हमारी पुरानी यहाँ जो भी थे पुराना है, जाहिलाना रस्म थी। तो कहता है मैं उसके साथ ज़िंदा दफन होने को भी तैयार हूँ। 10 कहता आया फिर देखो, देखते हैं कौन मानता है कौन देखते हैं भी तुम साथ दफन होना पसंद करोगे मैं, ये एक्सट्रीम ही है ना उसकी। तो द कॉम्बेटेंट किधर गए, इधर से है। कॉम्बेटेंट्स आर पुल्ड अपार्ट, दोनों लड़ रहे हैं ना, जिनको फिर इनको लड़ाका तैयारों को उन्होंने पीछे किया। पुल्ड अपार्ट बाय द फ्यूनरल कंपनी, गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस डिक्लेयर दैट हैमलेट इज मैड। उन्होंने पक्का इनको यकीन हो गया, पागल हो गया। हैमलेट स्टॉर्म्स ऑफ एंड होरेशियो फॉलोज, वो चला गया पीछे से, ये भी पीछे पीछे। द किंग अर्जेस लेडीज टू बी पेशेंट एंड टू रिमेंबर देयर प्लान फॉर रिवेंज, कहता भी हौसला रखो, हमने जो प्लान किया हुआ ना हैच, उसके मुताबिक चलेंगे। इसका एनालिसिस देखते हैं इस फर्स्ट सीन का। द ग्रेव डिगर्स आर डेजिग्नेटेड एज क्लाउन्स। क्लाउन्स जो होते थे उस इरा में, उसको फूल भी कहते थे, तो ये क्लाउन्स के तौर पर हम ले लेते हैं। लेकिन ये बड़ा ही एक अननेचुरल सा है कि ग्रेव डिगर को आप क्लाउन कहें, लेकिन इनका करेक्टर जो ड्रामा के अंदर बनता है वो क्लाउन वाला ही बनता है। इन द स्टेज डायरेक्शंस एंड प्रॉम्प्ट्स, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन शेक्सपियर्स टाइम द वर्ड क्लाउन रेफर टू अ रस्टिक और पेजेंट। अब हम इस लफ्ज़ की जो स्ट्रक्चरलिज्म वाली बातें पढ़ें, सिग्निफाइड साइन वगैरह, आज क्लाउन का मतलब मस्खरा बन गया, तब वो फूल होता था। मस्खरा को क्या कहते हैं, फूल या जेस्टर कहते थे। ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो क्लाउन था वो एक रस्टिक या पेजेंट को कहते थे उस वक्त, रस्टिक या पेजेंट आदमी को। आज क्लाउन की मीनिंग और है। एंड डिड नॉट मीन दैट द पर्सन इन क्वेश्चन वाज फनी और वोर अ कॉस्ट्यूम। हम वो जो नाक पे मोटा सा नाक लगा के लाल सा और टोपी रख के क्लाउन बने होते हैं, वो वाला एलिमेंट आपके जहन में इमेज नहीं आना चाहिए इसका, ना ही ये कोई जेस्टर था। क्लाउन्स थे, क्लाउन्स के मतलब वो पेजेंट, मजदूर टाइप और या फिर गांव के लोग। द ग्रेव डिगर represent these both grave diggers represent a humorous type commonly found in Shakespeare's plays. The clever commoner who gets the better of his social superior through wit. आपको इस ड्रामा में तो फूल नहीं है, ना क्लाउन थे बड़े कोई इतने ख़ास। किंग लियर में एक परमानेंट फूल जो है वो किंग लियर के साथ होता है उसके। अब ये वो लोग होते हैं जो जिनको एक ख़ास हद तक है ना लीवरेज होती है बात करने की, अपने वो नहीं जैसे शाही मस्खरे होते हैं, हरकत करेंगे, बादशाह उसको कंडोन करेगा, सारे लोग हंस पड़ेंगे, कहेंगे इसने कौन सी बात मजाक में की है, या कोई इनडायरेक्ट बात करेंगे। उनकी बातें माफ़ होती हैं, उनका काम ये है बात करना, मिरासी जिसे हम कहते हैं। वो जस्ट अपने जुगत कोई सुना के या कुछ ऐसा वाक़या सुना के लाइटर मोड में बड़ी बात करेंगे। शेक्सपियर के जो फूल्स हैं दे आर वेरी सेन। और आपको जेस्टे, क्या नाम उसका, 12th नाइट में भी बड़ा सेन फूल मिलता है, फेस्टे नाम है उसका। फेस्टे मतलब उसको मैं जब उसका तर्जुमा मैंने किया हुआ था खुशियाँ,
फेस्टिविटी से ना, फेस्टे खुशियाँ तो खुशियाँ भी बड़ा अक्लमंद किस्म का फूल हमें मिलता है। फूल उसको आयरॉनिकली कहा जाता है, उसका काम है। लेकिन ये जो शेक्सपियरियन फूल्स हैं, क्लाउन्स हैं, ये दे आर वेरी सेन वंस। वो थ्रू अ लाइटर मोड दे आउटविट देयर सुपीरियर्स, उनको हैरान कर देंगे, ऐसी बात करेंगे, ऐसी ऐसी बात सुनाएंगे। उसमें किंग लियर जब निकल जाता है ना बाहर उसको, तो वो उसके बाद उसकी बेटियां उसको उधर से बादशाह से भी फारग कर देती हैं। तो वो उसके साथ फूल के तौर पर वो वैसे ही साथ साथ घूम फिर रहा है ना। और जैसे शराबी फिल्म में अमिताभ के साथ नहीं कि मुंशी जी साथ में, मुंशी जी की तरह वो फूल भी किंग लियर के साथ साथ है। सर इंडिया में हीरोज के साथ भी होते हैं एक आध छोटा सा, हाँ वो फजूल सा कैरेक्टर, वफादार दोस्त टाइप। ये फूल एक बाकायदा एक डेजिग्नेशन थी अपने कोर्ट के अंदर। तो वो जो किंग लियर का होता है ना फूल, तो वो भी बड़ा विटी है। तो वो एक जगह पे कहता है कि जब वो बादशाह से फारुग हो गया, कहता है कहता है उसको कि आई एम बेटर दाउ आर्ट नाउ, दाउ आर्ट नथिंग, आई एम अ फूल। मेरे पास तो फिर भी एक छोटा मोटा ओहदा है ना मरासियाँ भावें, तुसी तो किंग भी नहीं रहे हूँ बेटर दाउ आर्ट नाउ। तो वो ये बात बड़ी बड़ी वो विटी बातें करेंगे। सम हैव, वो जो किंग वो जो फेस्टे था वो कहता है कि वो एक बंदा अपनी क्या है फोर्सबली साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बड़ा ग्रेट आदमी। तो वो उसे इम्प्रेस नहीं होता, बल्कि उससे कहता है सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। लानत की तरह उनके ऊपर पड़ी होती है। तो वो आप किस कैटेगरी के ग्रेट हैं वो कहता है बताएं। तो यहाँ पर भी आपको ये क्लाउन है उसी फूल की कैटेगरी में और इस तरह से बातें करते हुए नजर आते हैं। At the Globe Theatre, this type of character may have particularly appealed to the groundings, the members of the audience who could not afford seats and thus stood on the ground. Though they are usually figures of merriment, in this scene, grave diggers assume a rather macabre tone, since their jests and jibs are all made in a symmetry. सिमेट्री मतलब ये जो ग्रेवयार्ड को कहते हैं ना। अब जगह जो है वो कौन सी है, सिमेट्री, अ ग्रेवयार्ड, और बात वहाँ पे हो रही है लाइटर। तो ये बड़ी आयरॉनिक और थोड़ा सा ना अजीब किस्म का, आप कह लें कि डार्क ह्यूमर सा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अमंग द बोन्स ऑफ द डेड, आप कब्रस्तान में कब्र खोदते हुए ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे ना बंदे को दुनियावी बातें हैं तो वो डर सा आता है। Their conversation about Ophelia, however, furthers an important theme in the play, the question of the moral legitimacy of suicide under theological law. कानून मज़हब के तहत जो खुदकुशी है वो हराम है, लेकिन इसके ऊपर हम एक अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं, शायद हमने बातें कर भी रखी हैं कि हाउ फार सुसाइड इज़ फॉरबिडन एंड हाउ फार इट इज़ good for a person who is living a very miserable life. What should he do now when he is in such a condition? तो खुदकुशी क्यों करेगा इंसान, कौन से हालात वाक़यात हैं, उस सूरत में उसके पास सोलेस क्या है, कंफर्ट क्या है जिधर से ले। मज़हब हमें खुदकुशी इसलिए मना करता है कि मायूस नहीं होना खुदकुशी की तरफ। जान अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है, इस नेमत की भी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब इंसान ऐसा करता है जैसे इसका मतलब आप मायूस हुए खुदा की रहमत से, अगर इसी अलाउ कर दिया जाए तो फिर दूसरा बंदा इस तरफ भी चला जाए, ये भी एक बात है। वो क्या एक शेर है कि खुदकुशी करने वाले का भी कातिल मौजूद होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वो कातिल आए, खुदकुशी वाले का भी कातिल कोई है ना, जिसने किसी न किसी सोसाइटी है या कोई है किसी के नीचे प्रेशर में आके कुछ ऐसा किया। वो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है उसकी, तो कातिल तो उसका भी होता है कोई ना कोई, उस खुदकुशी वाले का। लेकिन यहाँ पे कि उसने रिलीजियस थियोलॉजिकल लॉज जो हैं वो उसको हराम करार देते हैं। By giving this serious subject a darkly comic interpretation, Shakespeare essentially makes a grotesque parody of Hamlet's earlier to be or not to be soliloquy, indicating the collapse of every lasting value in the play into uncertainty and absurdity. हर वैल्यू जो है यहाँ पर डिटेरियोरेशन का शिकार है, अनसर्टन हो चुकी हैं चीज़ें। अनसर्टेनिटी जो होती है ना वो इंसान की बड़ी वर्स्ट कंडीशन होती है, सबसे तकलीफ दे जो कंडीशन है वो अनसर्टन होती है। किसी बात का यकीन हो जाए, सर्टेनिटी में हो,
है या ना है, दोनों चीज़ों का होना ना होना एक अच्छी पोजीशन है। ना होना भी आपके लिए बड़ा कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन अनसर्टन रहना किसी चीज़ का वो तकलीफ़ दे है, परेशान कुन भी है। कोई गुम गया, बच्चा ही गुम गया किसी का, ये बात कि वो पता नहीं किस हाल में होगा, ज़्यादा तकलीफ़ दे बजाय इसके पता चल जाएगा वो मर गया है। तो ये वाली बात है, अनसर्टेनिटी बड़ी बुरी चीज़ है। Hamlet's confrontation with death, manifested primarily in his discovery of York's skull, is like Ophelia's drawing an enduring image from the play. However, his gloom, ये आप ना अक्सर हैमलेट का अगर आप गूगल पे करो ना, उसका इमेजेस निकालो इसके, या आपको मुख्तलिफ किस्म के टाइटल जो मिलेंगे, इसके कवर्स मिलेंगे बुक के हैमलेट के, तो हैमलेट है वो, उसमें करेक्टर हैमलेट दिखाया जाएगा ऐसे वो स्कल को पकड़ के बैठा हुआ है उस गुफ्तगू। ये वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग इमेजेस है इस प्ले का, जिसमें ये वाला, जिसमें यॉर्क की स्कल पकड़ी हुई है और ये बात कर रहा है कोई। However, his solemn theorizing explodes in grief and rage when he sees Ophelia's funeral procession. In his assault on Laertes, offers a glimpse of what his true feelings for Ophelia might once have been. उसकी अच्छी वो जो पुरानी जो ट्रू फीलिंग्स थी वो दोबारा से रिजुविनेट होती हैं, उसके लिए रिकिंडल्ड हैं। Laertes' passionate embrace of the dead Ophelia again advances the subtle motif of incest that hangs over their brother-sister relationship. Interestingly, Hamlet never expresses a sense of guilt over Ophelia's death. इसने उसकी मरने पे कोई बात नहीं की, ठीक है ना। वो हैमलेट वो लेटिस के साथ झगड़ा शुरू हो गया यहाँ पे कि कौन क्या है। उसने ये नहीं अफसोस का इजहार किया कि बेचारी मर गई, बच जाना चाहिए, ये वो सारा कुछ एक तरह शुक्र से किया इसने किसी तरह से। विच ही इनडायरेक्टली कॉज थ्रू हिज मर्डर ऑफ पोलोनियस। ये भी तो उसका जिम्मेदार है ना, अगर उसने सुइसाइड किया तो फिर इसका जिम्मेदार ये भी है। तो कहीं ना कहीं कातिल ज़रूर होता है, तो कातिल ये है उसकी मौत का। कैसे इसने इसके बाप को मारा, उस गरीब से वो बचा गई है ना, तो ये भी है मेरे कातिल मेरे दिलदार। दिस सीम्स होली inadequate given that Hamlet has previously claimed repeatedly only to be feigning madness. जब अगर वो कहता है कि मैं पागल हूँ, फींड पागलपन है तारीख किया हुआ अपने ऊपर, फिर तो हम शायद मान लें कि उसको इस चीज़ का कोई मतलब नहीं था। फींड है तो फिर हम नहीं मान सकते। अगर वो सचमुच में पागल होगा फिर तो ये बात दरगुजर हो सकती है कि उसने इजहार ही नहीं किया अफसोस का, तो ये फिर क्या है। दिस सीम्स होल बट बाय द सेम टोकन to expect moral completeness from a character as troubled as Hamlet might be unrealistic. फिर तो अगर पागल है उससे तो हम ये कहना ही बड़ा फजूल है कि तुम्हें अफसोस नहीं हुआ, क्या नहीं किया। After all, Hamlet's defining characteristics are his pain, his fear and his self conflict. ये उसके तीन कॉन्फ्लिक्ट उसकी पर्सनैलिटी के हैं जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं, पेन, फियर और उसका कॉन्फ्लिक्ट। ये ऐसा इंसान है। वेयर ही टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोलोनियस डेथ, ही वुड प्रोबेबली नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट ऑफ द रिजल्टिंग गिल्ट। यहाँ कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद इस बात से, इस गिल्ट से जान नहीं छुड़ा सकता कि उसने किसी इंसान को मारा है, अगर वो अकल में है, फींड नहीं है उसकी मैडनेस। तो A notable minor motive that is deployed in this scene is Hamlet's obsession with the physicality of death. मौत की तरफ भाग भाग के जा रहा जो वो क्या है। दो मैनी ऑफ हिज, पहले भी इसने सोचने की कोशिश की थी ना, मैं टू बी और नॉट टू बी, खुदकुशी की। इसको क्या इतना मरने का शौक क्यों है। ऑफ हिज थॉट्स अबाउट डेथ, यानी इसको डेथ वाली बात बड़ी फैसिनेट करती है। हैमलेट ये एक तो बात, this is nowhere more evident than in his preoccupation with York's skull when he envisions physical features such as lips and skin that have decomposed from the bone. Recall that Hamlet previously commented to Claudius that Polonius' body was at supper because it was being eaten by worms. ठीक है, कहता उसका लंच हो रहा है उसकी बॉडी का वर्म्स के जरिए। दिस ही इज़ आल्सो फैसिनेटेड बाय द इक्वलाइजिंग इफेक्ट ऑफ डेथ एंड डिकम्पोजिशन। सबको बराबर कर देती डस्ट,
equalizing effect. Great man and beggar both end as dust. In this scene, he imagines dust from the decomposed corpse of Julius Caesar being used to patch a wall earlier. यानी उसकी वो डस्ट जिसका वॉल को पैच करने के लिए जोड़ने के लिए गारा बनाया जाए जो भी उस वक्त वो जोड़ने की कोशिश करते थे. He noted a man may fish with a worm that have eat of a king and eat of the fish that hath fed of that worm. मतलब कि जिसको किसी ने दाना डाला होता है, कभी फीड किया होता है मछली को, उसी मछली कोई और पकड़ के उसको वो खा रहा है. क्या हो रहा है? सबका अंजाम एक ही हो रहा है. A metaphor by which he illustrates how a king may go a progress through the guts of a beggar. तो ये एक फर्स्ट सीन था, इम्पोर्टेंट सीन. लास्ट और फाइनल जो सीन है दैट इज़ सीन नंबर 2 ऑफ द 5th एक्ट ऑफ दिस प्ले, द लास्ट सीन ऑफ दिस प्ले एज वेल, वेयर वी सी द नेक्स्ट डे एट एल्सिनोर कैसल में आ जाते हैं. Hamlet tells Horatio how he plotted to overcome Claudius' scheme to have him murdered in England. He replaced the sealed letter carried by the unsuspecting Rosencrantz and Guildenstern, which called for Hamlet's execution, with one calling for the execution of the bearer of the letter. उसने कहा था कि इनको कत्ल करना. इसने तब्दील क्या कर दिया उसके अंदर कि ये जिनके हाथ खत आ रहे हैं उनको मार दो, यानी कि ये दोनों रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डस्टन themselves, अब वो वहाँ पे वो मारे जाएंगे जब वो पहुँचेंगे. ही टेल्स होरेशियो दैट he has no sympathy for Rosencrantz and Guildenstern, who betrayed him and catered to Claudius, but that he feels sorry for having behaved with such hostility towards Laertes. उसको अफसोस है कि लेरेटीज़ के साथ मैंने ज़्यादती की है. रोजनक्रैंट्स और इनके साथ कहता बनता ही है उनका. In Laertes' desire to avenge his father's death, he says he sees the mirror image of his own desire. कहता है ये तो मेरे जैसा, इसका दुख और मेरा दुख तो साझा ही है. एंड ही प्रोमिसेस टू सीक लेरेटीज़ गुड फेवर. वो चाहता है कि वो भी मेरे साथ मिले तो हम अपने अपने बाप का ले सकें बदला. देयर कन्वर्सेशन इज़ इंटरप्टेड बाय ऑस्ट्रिक, अ फूलिश कोर्टियर. वो बात कर रहा है शहज़ादा और ऐसे कोई आके इंटरप्ट नहीं कर सकता जब तक तो, लेकिन ये एक अजीब सा दिखाया कि वो आ गया है. ऑस्ट्रिक ट्राइज टू फ्लैटर हैमलेट बाय एग्रीइंग विद एवरीथिंग हैमलेट सेज. फ्लैटर ऐसे होते हैं जी हजूरी करने वाले, बाद में हाँ. इवन व्हेन ही कंट्राडिक्ट्स हिमसेल्फ इन द स्पेस ऑफ सेकेंड्स, ही एग्रीज फर्स्ट दैट इट इज़ कोल्ड देन इट इज़ हॉट. अभी उसने कहा यार ये ठंडा, हाँ जी ठंडा. उसने कहा नहीं यार नहीं ये गर्म था, मुझे गलती लगी, हाँ जी सर ये गर्म था. वो दोनों सूरतों में ही उसकी तरफ मुँह से हाँ यस सर यस बॉस टाइप लोग हैं. He has come to tell them that Claudius wants Hamlet to force with Laertes and that the king has made a wager with Laertes that Hamlet will win. Then Osric begins to praise Laertes effusively through Hamlet and Horatio, though Hamlet and Horatio are unable to determine what point he is trying to make with his overly elaborate proclamations. Finally, a lord entered and asked Hamlet if he is ready to come to the match, as the king and queen are expecting him. Against Horatio's advice, Hamlet agrees to fight. उसने रोका भी, रुका नहीं. Saying that all's ill here about my heart, मैं दिल दुख रहा है. But that one must be ready for death, since it will come no matter what one does. दिल तंदुरुस्त है या बीमार है, दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया के शाम. तो कहते जब जाना ही है तो फिर देखी जाएगी. द कोर्ट मार्चेस इनटू हॉल एंड हैमलेट आस्क्स लेरेटीज़ फॉर फॉरगिवनेस, क्लेमिंग दैट इट वाज हिज मैडनेस नॉट हिज ओन विल. अगर तो यहाँ पे हैमलेट सच बोल रहा है तो मैडनेस उसने मैडनेस को कहा है या अपने गुस्से को कहा है. तो यहाँ से यही पता चलता है कि अगर वो मैडनेस कह रहा है कि मैं यार पागल हो गया, इसका मतलब पागलपन के दौरे पड़ते हैं, बीच बीच में फिट्स आती हैं इसके ऊपर पागलपन की, मैडनेस की. तो ये पार्शली पागल है, मुकम्मल पागल नहीं है, तो इसलिए फॉरगिवनेस सीख कर रहा है उससे. दैट मर्डर्ड पोलोनियस, Laertes says that he will not forgive Hamlet until an elder and expert in the fine points of honor has advised him in the matter. कोई बड़ा समझदार
पंचायती आदमी होते घर वाले, बड़ा कोई आके मुझे बताए कि मुझे क्या बनता है, मेरा यहाँ करना चाहिए कि नहीं. बट इन द मीन टाइम ही सेज ही विल एक्सेप्ट हैमलेट्स ऑफर ऑफ लव. इसी दौरान वो ये भी कहता है कि वो कबूल करेगा. दे सेलेक्ट देयर फॉइल्स ब्लंटेड स्वर्ड्स यूज्ड इन फेंसिंग. तो वो जो होती है लकड़ी सी गत्ते की या कुछ ऐसी जो होती हैं जो जिससे इंसान को तकलीफ़ ना आए वाली वो स्वर्ड्स पकड़ लेते हैं. एंड द किंग सेज दैट इफ हैमलेट विंस द फर्स्ट और सेकंड हिट ही विल ड्रिंक टू हैमलेट्स हेल्थ. उसने अपनी स्कीम के तहत काम किया हुआ है. देन थ्रो into the cup a valuable gem, actually the prison. उसके बाद उसने एक वैल्यूएबल जैम, बड़ा कीमती पत्थर, मोती, डायमंड जो भी था उसके अंदर फेंक दिया, जो कि दरअसल क्या था, जहर था. एंड गिव द वाइन टू हैमलेट. द ड्यूल बिगिंस. हैमलेट स्ट्राइक्स लेटीज बट डिक्लाइंस टू ड्रिंक फ्रॉम द कप. मारता है लेकिन वो कप लेने से इनकार कर देता है. सेइंग दैट ही विल प्ले अनदर हिट फर्स्ट. कहता है मैं एक और राउंड खेलूँगा, उसमें दोबारा हिट करूँगा पहले. He hits Laertes again. Gertrude rises to drink from the cup. The king tells her not to drink, but she does so anyway. उसने रोका भी, रुकी नहीं वो, पी लेती है. In and aside, Claudius murmurs, "It's a poisoned cup. It's too late." Aside किया ना, साइड खुद से व्यवहार किया. Laertes remarks under his breath that to wound Hamlet with a poisoned sword is almost against his conscience. वो भी, उसका भी ज़मीर जाग गया कि उसको एक पॉइजनस जो है उसके साथ मेरे ज़मीर के ऑनर के ख़िलाफ़ है. सर उसको पता था कि उसको, वो तो प्लान किया हुआ था उन्होंने. बट दे फाइट अगेन एंड लेटी स्कोर्स आ हिट अगेंस्ट हैमलेट ड्राइंग ब्लड. हैमलेट के लग गई, मतलब उसका ब्लड भी आ गया. और इसमें मतलब है अगर तलवार उसके ऊपर ज़रब आ गई है कोई तो उसके अंदर जहर भी चला गया है. Scuffling, they manage to exchange swords and Hamlet wounds Laertes with Laertes' own blade. उसने जानते बूझते दिया कि मेरे अपने ज़मीर क्या तो मजबूर हो कि मुझसे हुआ, अगर आप ये मुझे मार लेगा तो मेरा ज़मीर बराबर हो जाएगा. The queen falls. Laertes, poisoned by his own sword, declares I am justly killed with my own treachery. मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, मैं अपने धोखे की वजह से मारा गया. The queen mourns that the cup must have been poisoned. क्वीन भी ये बिलबिलाती है कि इसमें जहर मिलाएगी. कार्ड आउट टू हैमलेट. वो कहती है मौलिया, मौला होता ही उसने एंड डाइस, ये क्या मर गई वो. लेटीज tells Hamlet that he too has been slain by his own poisoned sword and that the king is to blame both for the poison on the sword and for the poison in the cup. तो अब हैमलेट ने दो लोगों का बदला लेना है. किसका? माँ प्यो दोनों ही हो गया. पहले बाप का था, अब माँ का भी साथ में मिल गया काम. Hamlet in a fury runs Claudius through with the poisoned sword and forces him to drink down the rest of the poisoned wine. दोनों तरह का उसने पॉइजन भी उसके स्टेप भी किया उसको, स्लेन उसे, और साथ में उसको वो उसके मुंह में उंडेल दी सारी शराब जो थी. Claudius dies crying out for help. कोई भी नहीं आया. Hamlet tells Horatio that he is dying and exchanges a last forgiveness with Laertes, who dies after absolving Hamlet. उसने माफ़ करके वो मर गया. उसका मतलब है कि पोलोनियस वाला जो इसके ऊपर इल्ज़ाम था, जुर्म था, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया. उसको फॉरगिवनेस मिल गई ना, आगे के लिए वो ओके हो गया. The sound of marching echoes through the hall and a shot rings out nearby. Osric declares that Fortinbras has come in conquest from Poland and now fires a volley to the English ambassadors. Hamlet tells Horatio again that he is dying and urges his friend not to commit suicide in light of all the tragedies. कि तुम भी ना ये कुछ ऐसा करना. But instead to stay alive and tell his history, he says that he wishes Fortinbras to be made king of Denmark, then he dies. ये क्या कि वो मर गया. सर वो कब्जा करने नहीं आया था? आया तो इसी नीयत से था. वॉली ऑफ फायर नहीं उसने की, उसने कहा उसको बना देना उसके इधर का. ये अपने वो ग्लैडिएटर का लास्ट सीन भी नज़र आता है जहाँ पे वो मर गया और कमा दे रहा अपने फौज को ये वो करना. Fortinbras marches into the room accompanied by the English ambassadors who announce that Rosencrantz and Guildenstern are dead. उधर उनका काम भी हो गया वो इंग्लैंड में. Horatio says that he will tell everyone assembled the story that led to the gruesome scene now on display.
Fortinbras orders for Hamlet to be carried away like a soldier. उसको स्टेट बरियल के लिए भेज दिया गया। तो ये हमारा प्ले था। इस फाइनल सीन का हम एनालिसिस भी देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा जो है। इन द फाइनल सीन द वायलेंस सो लॉन्ग डिलेड। ये जो रिवेंज ट्रेजेडीज होती थी इनके अंदर वायलेंस बहुत दिखाया जाता था ऑन स्टेज। तो ये एक तरह की वो वाली जो गोर किस्म का एक दिखाया जा रहा है एक्शन, उसके ऊपर उधर चला जाता है काम। अभी तक इस पूरे जो है ड्रामा के अंदर आपने कोई ब्लड शेड नहीं देखा, सिर्फ पोलोनियस के अलावा एक जो है। यहाँ पे आपको कितना लोड ऑफ ट्रेजिक लोड मिलता है यहाँ पे आके, इतना सारा। सो लॉन्ग डिलेड अरप्ट्स विद डिजीइंग स्पीड। अब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वायलेंस दिखाया गया। कैरेक्टर्स drop one after the other, poisoned, stabbed, and in the case of Rosencrantz and Guildenstern, executed, as the theme of revenge and justice reaches its conclusion in the moment when Hamlet finally kills Claudius. Poetic justice भी होगा यहाँ पे, revenge tragedy भी मुकम्मल होगी। In the moments before the duel, Hamlet seems peaceful, though also quite sad. He says that he feels ill in his heart, but he seems reconciled to the idea of death and no longer troubled by the fear of the supernatural. देखें ये वो अपने वो जो ओल एंडरसन वाली जो स्टोरी है, वो भी मौत से भाग भाग के वो तंग आ गया ना। ये एक टाइम होता है जब जाकर इंसान सारी हकीकतों का इदराक हासिल कर लेता है, जहाँ पे जाकर फिर मौत भी उसको खौफनाक नहीं लगती, बल्कि वो इन चीज़ों के साथ ज़्यादा इजी फील कर रहा होता है। उसको लगता है कि जो मेरा जो साल्वेशन थी वो अचीव कर लिया मैंने। तो यहाँ पे हमें भी वो ऐसा लगता है, ऐसा ही उसके साथ हुआ है। एग्जैक्टली वट हैज़ कॉज्ड द चेंज इन Hamlet is unclear, but his desire to attain Laertes' forgiveness clearly represents an important shift in his mental state. Whereas Hamlet previously was obsessed almost wholly with himself and his family, he is now able to think sympathetically about others. He does not go quite so far as to take responsibility for Polonius' death, but he does seem to be acting with broader perspective after the shock of Ophelia's death. हो सकता है इस बात ने भी उसके अंदर से एक जो जीने वाली तमन्ना है ना ख़त्म कर दी है कि ओफेलिया नहीं रही। इसको शायद ये कहीं पे होगा कि मैं जब क्लॉडियस को मार दूंगा, अपने वो जो रिवेंज कर लूँगा, उसके बाद ओफेलिया थी उसके पास उम्मीद, अब उसके पास वो उम्मीद ही नहीं बाकी कोई। तो उसके बाद उसके जैसे ज़िंदगी का मकसद ख़त्म कर लिया, उसको लगा कि अब मेरे पास क्या बचा जिससे मैं ज़िंदा रहूँ। ये बात भी हो सकती है। हाँ, Hamlet's death at the hands of Laertes makes his earlier declaration over Polonius' corpse that God has chosen to punish me with this and this with me, वो बात भी अब मुकम्मल तौर पर पूरी होगी। इसने उसको पनिश किया, उसकी वजह से ये खुद पनिश हो गया। पहले था ना इसकी मैंने इस छोटे से जुर्म की सज़ा दी है, लेकिन मुकम्मल पनिशमेंट इक्वल जो एक तवाज़ुन में जाके हुई इसकी वजह से है। Prophetic, his murder of Polonius does punish him in the end, since it is Laertes' vengeful rage over the murder that leads to Hamlet's death. That death is neither heroic nor shameful. According to the moral logic of the play, Hamlet achieves his father's vengeance, but only after being spurred to it by the most extreme circumstances one might consider possible. Watching his mother die and knowing that he too will die in moments. The arrival of Fortinbras effectively poses the question of political legitimacy once again. In marked contrast to the corrupted and weakened royal family lying dead on the floor, Fortinbras clearly represents a strong-willed, capable leader, though the play does not address the question of whether his rule will restore the moral authority of the state, which was being discussed at the start of the play being written. उसको रोटन कहा था ना शुरू में, तब वो मोरालिटी में पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। So student, this was the last scene and last episode of the series of lectures on the play Hamlet. Thank you very much.